to all of you students. Today we are going to start new chapter. As you know, in last lecture we have completed our chapter Who Did Patrick's Homework. In English we are having two books. The first one is Honeysuckle and one chapter we have completed from that book. So today we are going to start the next book, A Pact with Sun. And the first chapter of this book is A Tale of Two Birds. As the title suggests, the story revolves around two birds. So now we will start the chapter. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. So there was a mother bird and she was having two newly born babies. She lived in a nest in a tall shady tree, and the mother, as you know, mother always take care of their children. Here also mother always take care of the little ones because they were the newly born babies. One day there was a big storm. Big storm means here strong wind. Okay, एक बहुत बड़ा तूफान आता है. There was a thunder, lightning and rain. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. इतना तेज तूफान था कि जितने भी फॉरेस्ट में ट्रीज थे उनको वो पेड़ जो है उखाड़ दिया उसने, अपरूटेड कर दिया. अपरूटेड मीन्स उखाड़ देना. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. जिस पेड़ में वो बर्ड्स रहते थे विद देयर बेबीज, वो भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird, and in this incident the mother bird was died. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. But luckily, जो दोनों newly born babies थे, they are safe, and the wind blew them to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक बर्ड वहाँ आके रुकती है where the gang of robbers means the evil persons lived. Cave means here गुफा. ठीक है, एक गुफा में गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, इविल पर्सन्स रहते थे, वहाँ आके वो बर्ड रुकती है. एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और उसी गुफा के दूर में एक ऋषि का आश्रम था. द अदर लैंडेड देयर, वो वहाँ जाके रुक जाती है. डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स नाउ. Okay, they all now grown up. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस जो है देश का जो राजा था, the king, he came there for hunting. He saw a deer and rode after it. उन्होंने डियर को देखा और उन्हें हंट करना चाहा. It ran deep into the forest followed by the king. ओके और वो उसका जो है पीछा करते करते वो एक डीप फॉरेस्ट में किंग चला गया. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज. राजा को तो पता नहीं था रास्ता, वो उस जंगल में अपने आप को जो है खो गया. ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और वो चलते चलते उसी जगह पे आ गया जहाँ पे वो दोनों बर्ड्स थे. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो वहीं पे जाके रुक जाता है उस गुफा के पास. वहाँ पे एक पेड़ होता है, वहाँ पे वो अपने घोड़े को जो है टाइप करता है एक ट्री से और उसी पेड़ के नीचे खुद भी रेस्ट करने लगता है. Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है. Quick, hurry up, there is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, all else he will sleep away. Means that साउंड सिंग उसमें जो आवाज़ में क्या आता है कि जल्दी करो, कोई आया है पेड़ के नीचे, उसके गहने घोड़े सब छीन लो. हरी अप, अदरवाइज वो चला जाएगा. ही विल स्लिप अवे मीन्स यहाँ से भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. जिस पेड़ के नीचे बैठा था वहाँ पे एक big brown bird बैठी हुई थी. He also heard faint noises issuing from the cave. और उसे गुफा से कुछ जो है धीमी धीमी आवाज़ें भी आ रही थी. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो जितनी जल्दी हो सका उसने राजा जो उसने घोड़े को खोला और उस पर बैठ करके और वहाँ से वो he just ran out from there. Now soon he came to a clearing which looked like an ashram.
ठीक है, फिर वो एक जगह पे पहुंचता है, वेयर द सेकंड बर्ड वॉज देयर, जहाँ पे वो दूसरी बर्ड थी, नियर द आश्रम। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। आजकल आप रामायण में भी देख रहे होंगे कितने तरह तरह के आश्रम्स आ रहे हैं मुनियों के, वैसा ही आश्रम वो भी था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। वो अपने आप को वहीं, एक पास में पेड़ था, वहाँ घोड़े को बांध के अपने आप को वहाँ पे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही शांत प्रिय आवाज़ उसने सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। दैट साउंड इज सेइंग इट वॉज वेलकमिंग द किंग टू द आश्रम। उसने आश्रम में राजा का स्वागत किया। एंड वॉट शी सेड, उन्होंने कहा कि यू कैन गो इन साइड फॉर रेस्ट एंड देयर इज सम कोल्ड वाटर, यू कैन यूज इट एंड प्लीज बी कंफर्टेबल हेयर। द king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. तभी राजा ने देखा कि उस पेड़ में अगेन दैट बिग ब्राउन बर्ड, वही बिग ब्राउन बर्ड है। बट ही वॉज अमेज्ड नाउ, उसे बहुत ही अमेज हुआ वो कि हाउ इट कैन बी। ओके, वो दोनों बर्ड एक जैसी दिखती हैं बट दे आर टोटली डिफरेंट, टोटली अपोजिट। यू आर राइट सर, वो बर्ड कहती है, यस यू आर राइट, आंसर द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वो मेरा भाई है बट इट हैज़ मेड फ्रेंडशिप विद रॉबर्स। इविल पर्सन से उसने दोस्ती की है। ही नॉट टॉक्स एज दे डू, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। वो सिर्फ वही बातें करती है जो वो उस माहौल में उसने सुना है, उसी को वो अडॉप्ट की है। तब तक वो जो है द ऋषि एंटर द आश्रम, तब तक ऋषि आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। वो उनका वेलकम करते हैं, कहते हैं प्लीज़ बी कम्फर्टेबल हेयर, इसको अपना घर ही समझें। यू लुक टायर्ड एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। आप यहाँ रेस्ट करिए, फिर वी कैन शेयर आवर फूड, फिर आप हमारे साथ हमारा खाना शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो लाइक। उन्होंने बोला किंग ने कि यस द बोथ बर्ड्स आर लुकिंग वेरी सेम, दे बोथ आर ब्रदर्स बट देयर character is very different, their behavior is very different, the forest is full of surprises, he said. उन्होंने कहा कि कितना ज़्यादा सरप्राइज है इस फॉरेस्ट में, आई एम वेरी अमेज्ड। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक इंसान की पहचान उसकी कंपनी से होती है, कि वो किस माहौल में बड़ा हुआ है, किस तरह के फ्रेंड सर्कल में वो बड़ा हुआ है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। उस बर्ड ने हमेशा उन जो है इविल पर्सनस की बात सुनी। ही इमिटेट्स देम, वो उन्हीं की नकल उतारने लगा। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और इसलिए वो हमेशा जो है डकैती करने की, चोरी करने की बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। इस तरह के मैंने बहुत सी जो है इंसिडेंट सुने हैं। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, लेकिन एक ये बर्ड है जो हमेशा जो है आश्रम में सबको वेलकम करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब वो जो ऋषि हैं वो उनको वेलकम करते हैं कि प्लीज़ कम इनसाइड एंड रेस्ट इन द आश्रम, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस। मैं आपको इस प्लेस के बारे में और बहुत सी चीज़ें बताता हूँ। एंड दिस बर्ड्स, और इन बर्ड्स की स्टोरी की कैसे ये मेरे पास तक दोनों आए। सो दिस वॉज द स्टोरी। सो वॉट वॉज द मोरल, यू नो, कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है इट शुड बी गुड। सिर्फ ये नहीं कि आप जो है अच्छे चीज़ें ही अडॉप्ट करें, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होना चाहिए। देन यू विल बी द बेस्ट पर्सन एंड गुड सिटीजन ऑफ योर कंट्री। ओके, सो नाउ द story completed. In previous chapter we will have, in next chapter we will have question answers of this chapter. Okay, then thank you.